हे गुरु कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। मट्टी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गते कोट पराध हमारे खंडो। अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन विरद रखावो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक कर के गोले, होली किन्नी संत सेव। रंग लागा अत लाल देव। आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक। दया सिंध कृपा निध गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु। धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो। जो जगत गुरु ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान चरण छो प्राप्त इस पाक पाकीज़ा सर ज़मीन उत्ते हाज़रियां भर के हर साल दी तरह
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾਈ ਪੁਰਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਸੀਬਨ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਪੁਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ,
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਿਆ, ਸੀਸ ਲਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤਲਾਲ ਦੇਵ, आज हमारे बने फाग। क्योंकि साध संगत जिन इलाकों में यूपी हरियाणे में मनाई जाती ज़्यादातर होली, वो फाग कहते हैं। आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खिलन लाग। पर यह होली रब दे प्यारिਆਂ कोल बह के जपे हुए नाम नाल, और जदों अकाल पुरख गुरु ने नज़र की, साध संगत पता नहीं किहदे उत्ते गुरु ने नज़र कृपा कर देनी, किहदा मन रंगिया जाने। ये कोई इस गल का दावा नहीं कि कोई बंदा कवे जी मैं पाठ बहुत करना है। साध संगत जदों गुरु रंगण ते आउंदा उदों माफ करियो ना वो गुण वेखदा ना वो औगण वेखदा। गुण अवगुण मेरो कश ना विचारियो, न रंग ना वो रूप ना रंग ना रेख कुछ भी वेखदा नहीं। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਤ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कि होली वाले दिन किने ओदे कपड़े कित्थों पिचकारी मार के रंग देने, जिथों वो लंघदा की पता किधरों सज्जियों खब्बियों किने रंग सुट देने, ओदे कपड़े रंगे जाणगे, ओदा सिर मूँह उस रंग नाल भर जांदा है। पर उन्होंने पता नहीं कि राह जांदियां किने मेरे उत्ते रंग सुट देने। इस तरह साध संगत जदों गुरु दे घर दी कहानी चलेगी, इत्थे भी किसी नूं कोई याद चित नहीं किहदे उत्ते गुरु दी कृपा दा रंग चढ़ने। जदों धन गुरु नानक साहब महाराज रंगण दे आए, उदों साध संगत कोडे राक्षस वर्गे नाम नाल रंग के रख दिते। हुण कोडे राक्षस नूं चित चेते भी नहीं कि मैनू जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज सच नाल रंगण आ रहे ने। पातशाह ने कोडे राक्षस दे औगण ना वेखे। साध संगत वो जादूगरनियां जिन्हों नूरा शाह जादूगरनी कहते सन, औगणां नाल भरी आदमखानी लोकां नूं गुलाम रखण वाली, एडे जबर जुल्म ते लोकां उत्ते तशद्दद करन वाली, जदों गुरु ने नज़र किरपा कीती सच दे नाम दे रंग नाल रंग। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਹਾਂ, ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। गुण अवगुण मेरो कश ना विचारो, न देखियो रूप रंग शिंगारो। ना ओ गुण वेखदा ना औगण वेखदा। जदों नज़र किरपा होवे, वड्डे वड्डे पापियां नूं गुरु शब्द नाम और सच दे रंग नाल रंग के प्रवान करा दिंदा है। साध संगत आपां अरदास करनी है, सतगुरु असीं तुहाडे सिख खवाउने, भावें चंगे भावें मंदे, एक किरपा बख्शिश करो, सानू भी अपने सच दे रंग नाल रंग दो। साध संगत जदों श्री गुरु नानक साहब महाराज ने पंथ तोरिया, नाम उदों भी रखिया मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया, उदों भी नाम निर्मल पंथ। जदों 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रूप दिता, उदों इहदा नाम रखिया खालसा पंथ। खालस का अर्थ भी शुद्ध, निर्मल का अर्थ भी महल तो रहत। और साध संगत जदों पंथ की शुरुआत हुई, उदों नाल ही पातशाह ने ग्रंथ की शुरुआत की। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने पंथ भी शुरू किया, नाल ग्रंथ भी शुरू किया। क्यों? पंथ उत्ते चलण वास्ते चलण वालियां ने डायरेक्शन जरूरी सी कि उहदे उत्ते चल के सचियार किवें होना। सवाल जपजी साहब की पौड़ी में आएगा, किव सचियारा हुई है?
सचिहार का अर्थ भी मैल तो रहत सच्चा बिल्कुल शुद्ध। किव सचिहारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। उस तो बाद फिर पौड़ियां आउणगियां सिखा पहला हंकार छड्ड के गुरु कोल आई। अरदास कर तेरे मन का हंकार उतर जाए, तैनू वड्डी उम्र का हंकार ना होवे, तैनू पैसा धन दौलत का हंकार ना होवे। जे जुग चारे आर जा होर दा सुनी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चलने सब कोए। चंगा नाम रखाए कह तैनू ऐ होवे मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध होवे। मेरा नाम लोग सोभा नाल लैंदे ने, वो भी एक अलग एक स्टेट एक देश विच नहीं, नवा खंडा विच जानिए नाल चलने सब कोए। पातशाह ने कहा इन्ना सब कुछ होने के बावजूद एक गल का ख्याल रखी, जे तिस नजर ना आवे तम बात ना पूछे के रब दी नजर ना होई, तेरी किसे बात भी नहीं पूछनी तू कौन। इस धरती तो वड्डे वड्डे चक्रवर्ती राजे होके चले गए, रब दी दरगाह विच उन्हां दी कोई पाया कीमत ना पई। हजूर कलगीधर पातशाह ने इत्थों तक लिखिया जिन्हां दीयां बाहां विच किलियां वर्गी ताकत सी, जिन्हां दे घोड़े हवा नालों तेज दौड़दे सन, अंत संसार तो नंगे पैरी गए। रब दी दरगाह विच कोडी उन्हां दी कीमत ना पई। माते मतंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात न मारे। भारी पुजान के भू भली बिद न्यावत सीस न जात विचारे। इत्ते पह तो कहां बह भूपत अंत को नंगे ही पाए पना। हजूर ने कहा हंकार छड्डी, तू नदर का पात्र हो जाएगा, क्योंकि साध संगत नदर गुर प्रसाद और कर्म इन्हां दे अर्थ कोई होणगे। कर्म का अर्थ भी कृपा, गुर प्रसाद का अर्थ भी गुरु की कृपा, नदर का अर्थ भी गुरु की कृपा। जे तिस नदर ना आवे तां बात ना पूछे कि पातशाह फिर नदर होवे ते की करना चाहिए। कहंदे गुरु का उपदेश सुनना शुरू कर, गुरु का उपदेश पढ़ना शुरू कर। पंथ उत्ते चलना पहला सुन पढ़ कि उस पंथ उत्ते चलना किवें है, इसलिए पंथ दे नाल नाल ग्रंथ दिता है। मैं कई बार बेनती करता हूं, तुसीं भी आए हो साध संगत, बड़े दूरों दूरों इस धरती की खाक अपने मस्तक नूं लाउण वास्ते आए, वड्डे भाग हन। पर जदों तुसीं घरां तो चले, कोई 100 किलोमीटर तो आए, कोई 50 किलोमीटर तो आए, कोई दूजी स्टेट तो भी आए। और ख्याल रखियो कोई बंदा 10-20 लख की कार च आया, कोई 50 लख की गड्डी च आया, कोई 5-10 हज़ार के वाहन उत्ते आया। पर रोड उत्ते रस्ते उत्ते चलण वाले हो, वाहन भावें 50 लख का भी होवे, चलण वालियां ले रूल मर्यादा डिसिपलिन एक ही होएगा। इतना कदे नहीं कोई कहेगा मैं 50 लख की गड्डी चाहे अपनी मर्जी नाल चलावांगा, नहीं, अपनी मर्जी नाल नहीं। हर बंदे नूं उस सड़क का रस्ते का रूल फॉलो करना पैना। 5000 के वाहन ते चलण वाला भी खब्बे हथ चलदा है, 50 लख की गड्डी विच आउण वाला भी खब्बे हथ चलदा। अपनी मर्जी नाल नहीं तुसीं चल सकदे। इसे तरह गुरु का पंथ है, इहदे उत्ते चलण वाले लिए गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश है। भावें कोई सिख गरीब होवे अमीर होवे, हर सिख लई मर्यादा रहत एक होएगी, चलण वास्ते नियम इको ही होएगा। पातशाह नियम की है, हजूर कहणगे गुर सतगुर कहा जो सिख अखाए। हुण सिख ये थोड़ी लिखे हुए अमीर छोटा वड्डा, ज्यादा पाठ पढ़न वाला घट पढ़न वाला, पढ़िया लिखिया अनपढ़ ज्ञानी, सुनाउण वाला जां सुनन वाला, ये वास्ते कुछ नहीं लिखा। कल्ला ही सिख, सुनाउण वाला भी सिख है, सुनन वाला भी सिख है। जेड़ा रूल सुनन वाले ते लागू हुंदा है, उहिओ मेरे गुरु दा रूल साध संगत सुनाउण वाले ते लागू हुंदा है। ताइयों मैं उन्होंने साधु महापुरुषों के दीदार किए, एडियां वड्डियां पदवियां ते पहुंच गए, पर गुरु की बाणी का नितनेम नहीं छड्डिया। दुनिया उन्होंने संत कहन लग पई, पर बाणी का नेम नहीं छड्डिया। क्यों? वो गुरु की मर्यादा विच चलते रहे। गुरु ने नियम दस्या, जपजी साहिब दा जाप अखीर तक ना छड्डिया। इत्थों तक गुरु साहिबाना नूं जन्म देने वाली धन जननियां मामा साध संगत माता गंगा 6वें पातशाह नूं प्रकाश जन्म दिंदे ने, अखीर तक जपजी साहिब दा जाप करदे। बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी रहे ने, एडी वड्डी हस्ती होके आखिर वेले भी जपजी साहिब दा नेम ना छड्डिया। पता क्यों? गुरु दी मर्यादा लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पंथ नूं चलण वालियां ले ग्रंथ उपदेश है, इसलिए पंथ और ग्रंथ कट्ठी शुरुआत हुई। पातशाह कहणगे गुर सतगुर का जो सिख खाए,
जिन्हां नूं बाणी याद है नाल पढ़िओ, तुहानूं याद भी रहेगा, हाजरी भी लगेगी। पातशाह सिख वास्ते पंथ ते चलण लई ग्रंथ दा उपदेश की, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ध्यावे। पढ़ो, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਵਰਕ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਵਾਰ ਕਹਿ, 10 ਵਾਰ ਕਹਿ, 20 ਵਾਰ ਕਹਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਪ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, सो पल के उठ हर नाम ध्यावे। उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नहावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, हर रोज सिख श्री अमृतसर साहब इशनान नहीं कर सकेगा, पर बड़ी वड्डी बख्शिश गुरु रामदास साहब महाराज ने की है। सिखा गुरु दा हुक्म मन के उठ के वाहिगुरु जपी, फिर प्रभात वेले उठ इशनान करी। इशनान करके जपजी साहब गुरु दी बाणी पढ़ी। ये सच है, जिदन नियम बना के रोज इशनान करके बाणी दा जाप करेगा, तैनू घर विच भी इशनान करके ऐ महसूस होएगा तू अमृतसर ना के आए। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦਾਣਾ ਉਹੀਓ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀਓ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ 18 ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਪ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੇੜਾ ਸੱਜਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਆ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਪ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧ। ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ।
इस तरह साध संगत जदों पातशाह सुनने तो बाद फिर अगली पौड़ी ते आ गया। 4 पौड़ियां कह के फिर कहणगे सुन के ना कल्ला चला जाए, सुनने तो बाद मन्नण तक आउणा पैणा। माफ करियो कई बार सुनी हुई गल भुल जांदी, सुनिया हुई गल्लां बंदा विसार दिंदा है। उस तो बाद हजूर ने कहा मन्नना शुरू कर, किसे मन्नण वाले दी संगत कर, वो तैनूं दसेगा किवें मन्नणे। तुसीं घर विच माफ करियो बुक लिया के पढ़ो कि जी ड्राइविंग किवें करनी है, ट्रैफिक दे सारे रूल सीख लो, पर जिन्नी देर किसे कोलों बह के नहीं नाल सिखदे तुहानूं आएगा नहीं, तुहाडा झाका नहीं खुलेगा, तुहानूं आप वो ड्राइव करनी पेगी। पहले इधर उधर उक जाओगे, जदों ड्राइव करदे पैर पक जांदा है फिर बंदा सैकड़े मील गल्लां भी करदा जांदा है ते ड्राइव भी करदा जांदा है। इदां पातशाह ने कहा तेरे अंदर विकास बनेगा, पर सुनने तो बाद मन्नना शुरू कर। जो गुर कहे सोई भल मन्नो, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, मन दिया एक तेरे ते बख्शिश होएगी, ऐसा नाम निरंजन होए। पातशाह ने कहा गुरु दा दिता होया नाम तेरे उत्ते ऐसा रंग बखेरेगा, तेरे अंदरों निरंजन भाव कालक तो रहत करके रख दे। साध संगत शब्द का रंग अंदर दी मैल नूं धो दिंदा है। जदों गल मन्नण तक आई, पातशाह ने एक पौड़ी फिर अगे होर दिती। भाई मन्नण तो अगे भी कोई स्टेज है, महाराज मन्नण तो बाद की है? कहण लगे मन्नण वाले लोग कई बार मुकर जांदे, बहुते बंदे कई बार 4 बंदियां च मन लैंदे ने ठीक है जी, बाद में जाके मुकर जांदे। मन्नी हुई गल कई बार महीना क बंदा निभा लैंदा है, बाद में जाके फिर मुकर जाता है। छड्डो जी औखा है। गुर इतिहास विच मलूके चौधरी वर्गे गुरु अंगद साहब महाराज का हुक्म मन के शराब छड्ड गए। पातशाह ने कहा सी तू शराब छड्ड दे, जब मिर्गी तैनू छड्ड के चल जाएगी। ओदा मिर्गी दा दौरा हट गया। जिदन तंदुरुस्त होया उन्हें अपने होर संगियां साथियां नाल कुसंगियां कोल बहिंदियां बहिंदियां ओदा मन फिर तब्दील होण लग पिया। कई कुसंगियां ने कहा लै आओ, एवें गुरु ने थोड़ी तेरी बीमारी हटाई है। कई बार उदा भी हट जाती है, तू शराब पी ला कुछ नहीं हुंदा। अज असर होया, पहला कदे गिलास तक हथ गया, फिर 2 दिनों बाद असर होया एक दिन पीए लई। मन्नी हुई गल तो मलूका चौधरी मुकर गया और साथ संगत ओ बंदे ने परत के फिर शराब पीती। जदों घर वाली ने कहा तू गुरु दा वचन तोड़ दिता है, हंकार विच कहना लै गुरु ने थोड़ी ठीक कीता है, मैं आपे ही ठीक हो गया। उसे शराब नाल एक दिन चुबारे तो उतरदे नूं दौरा पिया, डिगदियां सार धौण दा मनका टुटिया, मलूका चौधरी मर गया। जदों घर वाली गुरु कोल जाके कहंदी हे गुरु अंगद साहब महाराज मेरे घर वाले नूं दौरा पिया, धौण दा मनका टुट गया। पातशाह ने कहा उन्हें वचन तोड़िया, हुण बेमुख होके मर गया। साध संगत कई बार मन्निया होया वचन बंदा मुकर जांदा है। हजूर ने कहा मन्नण तो बाद एक स्टेज एक डिग्री होर है बुझण दी। जदों तू बुझ लेंगा ना, ये शब्द क्यों जपना है, बाणी क्यों पढ़नी है, रहत क्यों रखनी है, शास्त्र क्यों पाने ने, जिदन ये सब कुछ समझ आ गया, बुझ लिया कि सेवा क्यों करनी है, उदन तू सचियार हो जाएगा। देखो कित्थों पौड़ी शुरू हुई। जे को बुझे होवे सचियार ते पहुंचना। पहला सवाल पातशाह ने किया किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। अगे जाके हुण अगली पौड़ी विच 15वीं पौड़ी च जाके कहा जे को बुझे होवे सचियार तवले उपर किता पहार। सिक्खी कल्ला धारण करन दा विषय नहीं, सिक्खी बुझण दा विषय। कई बार आपां सवाल करदे कादे वास्ते बाणी पढ़नी जी रोज, क्यों रहत रखनी है। 6वें पातशाह उत्ते सिखां ने सवाल किया। 5 गुरु साहबाना ने घोड़ सवारी नहीं की, शास्त्र विद्या नहीं की, युद्ध का अभ्यास नहीं कराया। आ 6वें पातशाह युद्ध का अभ्यास कराउण लग पे। 5 गुरु साहबाना ने फौज नहीं रखी, 6वें पातशाह ने फौज क्यों रख ली। 5 गुरु साहबाना ने कल्ले गद्दी मंजी ला के गुरमत का उपदेश दिता है, 6वें पातशाह ने तख्त क्यों बना लिया। जदों आ सिखां विच सवाल चले ते भाई गुरदास साहब ने कहा हे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सिख विच शंका कर रहे ने जी शास्त्रां दी की लोड़ है, अभ्यास की की लोड़ है, फौजां क्यों रख लईयां ने, शिकार क्यों खेडण लग पे ने, अकाल तख्त क्यों बना लिया, फौज क्यों तैयार कर लई है। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने कहा सी संगत में जवाब देवांगे। भाई गुरदास साहब ने कहा महाराज संगत में जवाब दिओ, सिखां दे अंदर शंका हो रही है। एक गल याद रखियो,
शंका होवे जे तर्क होवे, तर्क होना चाहिए। वैसे साडी कौम तर्क ने इधर उधर कर दी है, बहुता तर्क ठीक नहीं। मैं रात भी लाइव तो बेनती की, चढ़दी कला टाइम टीवी तो लाइव चल रहा सी। तर्क होना चाहिए, तर्क तरक्की नूं जन्म दिंदा है, पर सज्जनों तर्क दिल तो होवे, कल्ला दिमागी ना होवे। दिमाग दा दिल तर्क जिहड़ा है वो बंदे नूं हंकार विच लिआउंदा है। मैं हारना नहीं, दूजे नूं हराउणा है। तर्क दूजे नूं हराउण वास्ते पैदा करोगे, तुहानूं गुरु कोलों कुछ नहीं मिलेगा। असीं सिख तर्क करने एक दूजे नूं हराउण लई, वे ओनूं थल्ले लाउणा है, ओदी बेइज्जती करनी, ये कहना जी इहनूं तां आया ही नहीं कुछ भी। साध संगत, तर्क तुहाडे दिलों पैदा होवे और गुरु अगे अरदास करियो, फिर किसी बंदे तो पुछण दी लोड़ नहीं पैगी। हुक्मनामा लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा मुख वाक लाओ, करोड़ां सिखां दे सवालां दा जवाब गुरु ग्रंथ साहिब देणगे। हर रोज हुक्मनामा होंदा है, करोड़ां सिखां दे सवालां तर्कां दा जवाब गुरु ग्रंथ साहिब दे कोई हुक्मनामे विच आ जाए, पर तुसीं दिलों पुछणो चाहो। अज जदों सिखां अंदर तर्क होया ना, शास्त्र क्यों रखे, घोड़सवारी क्यों, शिकार क्यों खेडदे ने, छेवें पातशाह ने तखत क्यों ला लिया, फौजां क्यों रख लईआं ने। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा सी संगत विच जवाब देवांगे। पातशाह ने तर्क दूर किया, भरी संगत विच गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा, गुरु के सिखो, जिन्हां नूं शंका है कि शास्त्र क्यों पहन लए ने, अभ्यास क्यों करते, फौजां क्यों रखियां, शिकार क्यों खेडते ने, शस्त्र विद्या क्यों सिखा रहे ने। कहते सुनो गुरु के सिखो, किसे सिख नूं प्यास लगी होवे पानी दी, खूह दे विच पानी है, हाथ जोड़ के खूह नूं कहो, ए खूह महाराज पानी दे दिओ पीण लई। कहते दसो तुहानूं पानी मिलदा पीण वास्ते। वो कहते नहीं महाराज। कहते भाई दसो फिर पानी किवें मिलदा है। वो कहते महाराज एक गड़बे का गला रस्से नाल बन्नना पैंदा है, वो गड़बा खूह विच भगाउणा पैंदा है, फिर गड़बा विचों पानी दा भर के प्यास बुझदी है। हजूर ने कहा जिन्नी देर गड़बे का गला रस्से नाल ना बन्नीए उन्नी देर खूह विचों पानी नहीं निकलदा। अगली गल, किसी नूं मणी चाहिदी होवे सप दी, हाथ जोड़ के सप नूं कहो मणी दे दे। सज्जणों सप जहर नाल तां डंग मार देगा, पर हाथ जोड़िया मणी नहीं दिंदा। सप दी सिरी फिणी पैंदी है, जिन्नी देर ओदा मूंह ना भन्नीए, सिरी ना फईए, कदे भी मणी नहीं मिलदी। नारियल दे विच गिरी है, हजूर छेवें पातशाह कहंदे कहो नारियल नूं मैनूं गिरी दे खाण नूं। कहंदे नारियल दा मूंह भन्नना पैंदा है तां गिरी ओचों मिलदी है। इदां दुनिया दे लोकोए सच है सिखो। छेवें पातशाह ने कहा साकत बंदियां दा मूंह भन्नना पएगा, जिन्नी देर साकत नूं शास्त्र नाल जवाब नहीं देओगे उन्नी देर साकत सिद्धा नहीं होएगा। वो संत दी संतगिरी खोण दे आ जांदा है जे सामने शास्त्र दा डर ना होवे। साध संगत, भगती ते शक्ति रवाब ते नगारा ताइयों एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे कीते ने। गुरुद्वारे विच रवाब नाल कीर्तन भी हुंदा है, नगारा भी एक खुंजे रखिया हुंदा है। सिख हथ नाल माला भी फेर सकदा है, उन्हां हत्थां विच बाणी दा गुटका लैके पाठ भी करदा है। लोड़ पैण ते उसे बाणी दी जे कोई तौहीन करन आ जाए फिर हथ विच गुरु दे सिख दे शमशीर भी होनी चाहिए। ताइयों मर्यादा है। सब तो उत्तम अदब सत्कार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उच्चे तखत उत्ते विराजमान। और कदे वेख्यो गुरुद्वारा साहिबान दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो नीमा 2 नंबर ते जे किसी दा सन्मान है वो गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच शस्त्र सजाए हुए तुहानूं नजर आउणगे। हर गुरुद्वारा साहिब वो कोई सजावट नहीं है वे जी मोरे खंडे कृपान रखने ने गुरु साहब दे मोरे सजावट नहीं। सिख शास्त्रां दा सन्मान करदा है। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा सत्कार, उस तो बाद गुरु चरनां विच शास्त्रां दा सत्कार। हर तख्तां उत्ते शास्त्र विराजमान ने, क्योंकि 10वें पातशाह ने वचन कैसी सिखो, धर्म बिना ने राज चले हैं, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना पैरें तिस बिगड़े काज। जेड़ा नहीं पहनेगा काज बिगड़ेगा। राज शास्त्र दे अधीन है। अज छेवें पातशाह ने कहा साकत दा मूंह भन्नना पैंदा है। जिवें लोहे दी आयरन सीधी करनी होवे, लोहा लोहे नूं सीधा करन लई लोहे दा थोड़ा मारना पैंदा है। लोहे दे बधान तो बगैर लोहा सीधा नहीं हुंदा। कोई बंदा कवे लक्कड़ दे थोड़े नाल लोहा सीधा हो जाए, कदे नहीं सीधा होएगा। लोहे नूं सीधा करन लई लोहे दा ही थोड़ा मारना पैंदा है। ऐदां साकत नूं सीधा करन लई शास्त्र चकना जरूरी हो जाए।
छेवें पातशाह ने तां यह मर्यादा तोरी। जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा वो भाई गुरदास साहब ने नाल दी नाल लिखे, तां जो सिखां दे कोल वो लिखत रह जाए। छेवें पातशाह का उपदेश सुन के भाई गुरदास साहब ने पौड़ी लिखी, कहते ज्यों कर खूहों निकले गल वधे पानी, ज्यों मन काले सप सिर हस दे ना जानी। सप कदे हस के मणी दिंदा, ज्यों मूंह भन्ने गिरी दे नालिएर निशानी, त्यों बेमुख लोहा साधीए वगदी वादानी। इदां भाई बेमुख नूं सोधण वास्ते, साकत नूं सोधण वास्ते जिवें लोहा सिद्धा करन लई लोहे दा थोड़ा मारना पैंदा, इदां भाई साकत नूं सिद्धा करन लई शास्त्र जरूरी होएगा। साध संगत पातशाह ने जिथे सिख नूं बाणी दित्ती उत्थे नाल बाणा भी दिता है, जिथे सिख नूं सिमरन दिता है उत्थे नाल सेवा भी दित्ती है। क्यों? सिखा सिमरन करदियां हो सकदा है तेरे अंदर हंकार होवे मैं अमृत वेले उठदा, तेरे अंदर मान रवे जी मीह जावे नेरी जावे 40 साल हो गए मैं कदे नेम नहीं जी अपना खजाया। जदों गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा सी 4 बजे पहुंच जाईदा गुरुद्वारे, ये तेरे अंदर हंकार हो सकता है। इस तो बाद गुरु ने कहा कला सिमरन तक ना रही, अपने हथी सेवा करी तेरा हंकार धोता जाए। तुसीं कहोगे सेवा नाल हंकार किवें धोता जाना? एक नुकता एक दिन मैं दरबार साहब तो कहा, एवें नहीं तुहाडे कोलों कार सेवा वाले साधु सेवा कराउंदे। साध संगत सेवा करोगे तुहाडा संबंध किसी दूजे शरीर नाल पैणे। सिमरन तो मेरा इंडिविजुअल काम है ना, घर में कला बह के कोई बाणी पढ़े जिन्नी मर्जी पढ़ ले, कला बह के सिमरन करे जिन्ना मर्जी कर सकता है। पर जदों तुसी सेवा करनी है फिर किसी दूजे नाल संबंध है। बर्तन धोने ने कोई छकन वाला आएगा तो धोवोगे, जोड़े झाड़ने ने किसी दे जोड़े जमा होणगे तो झाड़ोगे। साध संगत अस्थान बनाना कला नहीं बना सकेगा, उहदे विच 10 20 50 सेवादार भी नाल रखने पैण। हुण जदों तुसी दूजियां विच रह के सेवा करनी उदों साध संगत हंकार टुटदा। पता क्यों? उदों तुहाडा पेपर शुरू हुंदा है। जिहड़ा सिमरन विच बाणी विच उपदेश पढ़िया वो सेवा विच तुहाडी प्रीख्या पैंदी है। तुसी सेवा करो 100 बंदियां चों 90 95 97 बंदे कह देणगे बहुत सोहनी सेवा हो रही है। 97 बंदे तुहानूं हथ जोड़ के कहणगे वाह जी वाह सेवा कर रहे हो, कमाल कीती है। पर सज्जना तेरे अंदर हंकार ना आ जाए, 3 बंदे 100 दे पिछे इदां दे भी होणगे जेड़े तेरी निंदिया भी करनगे, कादी सेवा करदे जी, ये तां बंदे चोर इकट्ठे होए आ जी, ये तां फलाना इकट्ठा होया। सिखा 3 बंदियां दी परवाह ना करी, जे तू निंदकां ते रुक गया फिर तेरी सेवा भी रुक जाएगी। मैं बहुत बंदे वेखे जी जेड़े कई साल कैंप लाई गए बाद विच बंद करते। मैं पूछा क्यों? कहते छड्डो भाई साहब लोग कदर ही नहीं करते, छड्डो भाई साहब दुनिया कदर ही नहीं करती। पर माफ करियो कले सेवा कराउण वाले कदे साधु दे दर्शन करियो, वो सेवा किसी हालत विच भी बंद नहीं कर। लोग उहदे मगर तुरन या ना तुरन, दुनिया उहनूं वाह वाह कहे या ना कहे, भावें लोकी ओदी निंदिया भी करन, संत कदे अपना मार्ग नहीं बदलता। जदों वो निंदिया सुन के भी अगे वधदा है उदों गुरु ओदा ग्रेड ओदा दर्जा बढ़ा दिंदा है। एक वक्त आउंदा है जिद्दण साध संगत निंदक लोग भी हाथ जोड़ के पैरों च मत्था टेकण लग पई, पर उस स्टेज तक पहुंचण लई पहलां बहुत कुछ सुनना पैंदा है। ताइयों पातशाह ने बाणी अंदर कहा रब दा जन हरी दा जन कदे अपना रस्ता नहीं बदलदा। आम लोग सेवा करनी बदल दिंदे ने, इत्थे सरोपा नहीं मिलिया गुरुद्वारा होर लभ लेना, जिथे सानू बहुते सरोपे मिलन उत्थे जाना है। नहीं, साधु दा रस्ता भावें कोई ओदी निंदिया करे भावें उस्तत करे, वो रस्ता कदे नहीं बदलदा। ताइयों पातशाह ने कहा हर जन रब दा जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रब दा जन कदे अपना गुण नहीं गवाउंदा, ओदे भावें लोक निंदिया भी करन, साधु कदे रस्ता नहीं बदलदा। वो अपने राह ते तुरदा है, भावें बुरा कहो भावें भला कहो, हम तन दियो है टार। वो उस अवस्था में जाता है जिथे हरख सोकते रहे न्यारो,
ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ। ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਕਮਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ 100% ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀਓ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਡੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਵਾਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ, ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਤਪਸ਼ ਔਰ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ। ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ, ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿੰਗਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਵਿਰਦ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੰਗ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਲੱਗਦਿਆਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਮਤ 3000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਮਾਲਾ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਸਾਹਬ ਕਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਸਾਹਬ ਕਹਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਲਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਬੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਰੁਮਾਲਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਬੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਪੜੋ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ, ओ साहिब मैं उसका चेरा। तू मेरा साहिब, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा खालसा, पर शर्त है रहनी विच आ जा, रहत विच आ जा। जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक न अन्नै, पूर्ण प्रेम प्रति सजै व्रत गौर, मड़ी मठ भूल न मानै। माड़े जे दुखां करके मड़ियां ते मत्था ना टेकन लग जाया कर, माड़े जे दुख करके कबरां वल ना भाज्या कर। खालसा तेरा अकीदा विश्वास गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते होना चाहिए। ताइयों रहरास विच पक्का शब्द शामिल कीता, तू अंदरों विश्वास नाल कह पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वे सबे वो भेद कहे हम एक न जान्यो। एक नुकता ध्यान नाल सुनियो, इदां दा गुरु ना किसे दा होया ना किसे दा हो सकता है। जिद्दां दा सानू दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज मिले, इदां दा गुरु दुनिया दे विच खोज के वेखियो, किसे नू इदां दा गुरु नहीं मिलिया। ये गल कल्ली आपां नहीं कहंदे, एक मुसलमान कवि ने यह गल, जिहड़ा 5 वक्त दा पक्का नवाजी है, ईमान दा पक्का मुसलमान है, उन्हें 2 किताबां इतिहास दे लिखियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। एक किताब दा नाम उन्हें गंजे शहीदां रखे है, एक किताब दा नाम उन्हें शहीदां ने वफा लिख रखे है। ओदे विच उन्हें एक गल कही, ओ दुनिया दे लोगों मैं खुद 5 वक्त दा नवाजी पक्का मुसलमान है, पर एक गल सच है, जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह अपने सिखां नूं करदा है, इन्ना प्यार दुनिया दा कोई पीर अपने मुरीद नूं नहीं कर सकिया। सब तो वध जे किसी ने सिखी वे सिख नूं प्यार कीता है, वो मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता है। वो लिखदा है, हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़नहार नहीं है। पता क्यों? जेड़ा अमृत सिखां नूं छकाया है, वो अमृत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप भी छकाया। जेड़ी रहत सिखां नूं दित्ती, वो आप भी रखी। जेड़े ककार सिखां नूं पहनाए, वो आप भी पहने। जेड़ी गल सिखां नूं मनवाई, वो गुरु ने आप भी मन्नी है। नहीं तो गुरु कईयां दे होणगे, निंदिया कोई नहीं। माफ करियो, चेले होर तरह दे ने, गुरु होर तरह दे। वो गुरु ना चेले नूं अपने वर्गा बनाउंदा है, ना चेले नूं अपनी जगह दिंदा है। ते साध संगत अपने आप नूं बाहरी तौर ते गुरु अखवाई जाण, पर वो चेलियां नूं इन्ना प्यार ते अपने बराबर नहीं कर सके। मेरे गुरु ने जिद्दां दा रूप सिखां नूं दिता, आप भी उही धारण कीता। कल्ली रहत तक, इत्थों तक नहीं, रहत तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो रखी है। आ सुनियो, इतिहास विच एक सतर आउंदी है, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जांदियां जांदियां सिੱਖਾਂ दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ करदे। खालसा अखवाई जाने बन भी गया कि नहीं बनया। अज पातशाह ने एक परख पाई, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जांदियां जांदियां पीर दादू की समाध नूं तीर नाल मत्था टेकता। बस तीर नाल सिर झुकाउण दी देर सी, खालसियां च चर्चा चल पई, महाराज सानू कहंदे हो गोर मड़ी मठ भूल ना माने, आप तुसीं एक गोर नूं कबर नूं सजदा क्यों कीता? जे रहत साडे वाली, अमृत साडे वाला, सब कुछ साडे वाला है, पातशाह तुहाडे ते भी लागू हुंदा है। बलिहार गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो वो तो जान के पातशाह ने परख पाई। हजूर ने अपने तन तो गतरे समेत 3 फुट की किरपान लाई, ते श्री साहब किरपान ला के पंथ नूं पेश करके कहा, दया सिंह गुरु गोबिंद सिंह भी तनखाइया होया, मैनू तनखा ला। किसी सिख की की हिम्मत सी तनखा ला? अखां भर गईयां, हाथ जोड़ के, नहीं पातशाह
असी तो उंज पुछिया, सतगुरां कहा नहीं दया सिंह मैं भी तनखाइया होया, मैनू तनखा लाओ। पातशाह ने किरपान श्री साहब उतार के गात्रे समेत पंथ नूं देती। 5 सिख बह गए तनखा लाउण। जदों पंजां ने आपस विच विचार करके तनखा लाई, 10वें पातशाह नूं तनखा लाई 25 रजत पन कड़ा प्रशादी देग भेंट करो पंथ नूं। कलगीधर पातशाह ने 25 रजत पन कड़ा प्रशादी देग पंथ अगे भेंट की। अरदास होई। फिर पंजां ने वापस श्री साहब जदों देना सी, उदों वो तनखा लाउण लग्गिया कहा सुनावे कौन गुरु नूं। 5 प्यारियां विचों प्यारे दया सिंह नूं कहा तुसीं सुनाओ ना। कहा नहीं मेरी जुबान तो तनखा नहीं सुनाई जाती। पता क्यों? मैं अखां नालों सब कुछ वेखिया। जिन्ना प्यार खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता इन्ना प्यार दुनिया दा कोई गुरु नहीं कर सकिया। मैं हाथ जोड़ जोड़ कहंदा रहा 10वें पातशाह तेरे पुत्तां दियां लाशां बिना कफन तो पईयां ने, मैं दमाला खोल के दिना पुत्रां दा मुंह ढक जाओ। 10वें पातशाह ने अपने पुत्तां दा मुंह नहीं ढकिया कपड़ा पा के। इन्नी गल कही दया सिंह मैं अपने पुत्तां तो प्यारे सिख छड्ड के पुत्रां ते कपड़ा किवें पा दा? मैनू पुत्तां तो प्यारे सिख ने, मैं इहो जिहे गुरु नूं अज तनखा किवें ला दा? मैं नहीं तनखा ला सकदा। मैं हाथ जोड़ जोड़ कहंदा रहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज तू दुनिया दा पहला प्यो है जिहड़ा पुत्तां दियां लाशां बिना कफना तो छड्ड के जा रहा। इस धरती ते गरीब तो गरीब बंदे होए ने, अज तक किसे प्यो दे पुत दी लाश बिना कफन तो नहीं गई। कोई गरीब भी होवे तां भी उत्ते कफन पैंदा है। तू तां शहनशाहां दा शहनशाह, दुनिया की कहेगी तेरे पुत्तां नूं कफन भी नसीब नहीं होया। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज बिना कफन पाया तुरन लगे। प्यारे दया सिंह ने जिहड़ी गल कही सी ना, वो वाकई अंदरों हिला सकदी सी किसे। 10वें पातशाह नूं अंदरों हिलाउण लई इन्ना अंदरों विराग भर के कहा पातशाह गरीब तो गरीब प्यो दी औलाद भी बिना कफन तो नहीं जाती। तू शहनशाहां दा शहनशाह, तेरे पुत्तां ते कफन क्यों नहीं? जिहड़ी गल दया सिंह ने कही उहनूं चरण सिंह सफरी साहब ने लिखे। प्यार विच भेज के सफरी साहब लिखदे कहंदे दया सिंह ने दिल भर के अंदरों कहा गरीब तो गरीब मापे। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे गरीब तो गरीब बंदे पए ने दुनिया। गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस किदे पुत गए ने। 10 किसे दे पुत बिना कफन तो गए होण। पातशाह इत्थे गरीब तो गरीब दुनिया है। 10वें पातशाह ने कहा नहीं दया सिंह रहन दे, मैं पुत्तां दे उत्ते कफन नहीं पा सकदा, मेरे सिख पुत्तां तो प्यारे पए ने शहीद। अज दया सिंह ने कहा मैं उस गुरु नूं किवें तनखा सुणादा? फिर सब तो वड्डी उम्र दे प्यारे मान सिंह जी उन्हें उठ के फिर तनखा सुनाई। महाराज 25 रजत पन कड़ा प्रशादी देग भेंट करो। वो देग भेंट होई। 10वें पातशाह तां पंथ विच फिर श्री सब किरपान लई। एक किथे बेनती करां गुरु कदे गलती नहीं करदा, क्योंकि गुरु अभुल है, आपां भुल्लण वाले हैं। भुल्लण अंदर सब को, आपां सारी दुनिया इम्परफेक्ट है, गुरु परफेक्ट है। भुल्लण अंदर सब को, अभुल गुरु करतार। पर गुरु ने सानू सिखाउण वास्ते ये सब कुछ रचिया। वड्डे तो वड्डा बंदा अखवावे मैं बहुत वड्डा है, पर याद रखियो गुरु दी रहत तो बाहर कोई जाए उन्होंने माफ नहीं किया जाएगा। कोई गुरु दी रहत छड्ड के कबरां ते मत्था टेके वो तनखाइया रहेगा। एवें कोई कवे जी मैं उत्थे माफ करियो, कई सिख कहण लग पे नहीं जी राजनीति विच ऐ चलदा जाना पैंदा। ठीक है, सब दा अदब सत्कार करदा है। सिख कदे किसे दियां कबरां नूं ठेडे नहीं मारदा। सिख कदे किसे दे धर्म दी नरादरी नहीं करदा। अज तक एक भी FRI किसे सिख उत्ते दर्ज नहीं किसे सिख ने किसे दे धार्मिक ग्रंथ दी नरादरी कीती हो। सिख किसे दे धर्म दी नरादरी नहीं करेगा। सिख किसे दियां कबरां नूं ठेडे नहीं मारदा। पर माफ करियो सिख अपने गुरु तो सिवाए सिर भी किसे अगे नहीं झुकाउंदा। ओनू विश्वास ते परवस है। वो अपने गुरु ते विश्वास रख के कहंदा पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। तेरा दर छड्ड के असीं किसे नूं भी नहीं मनदे। ओदे अंदर विश्वास है गुरपूरा भेट्यो बड़ भागी मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा।
अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाशै सुख सहजा, घर आनंद हमारे। साध संगत ये गुरु दी बख्शिश कृपा है, ये गुरु दी रहमत है। एक बेनती होर समझो, इस गुरु दे घर विच संत भी बनाया ते नाल सिपाही भी बनाया, पर वो चीज कादे नाल बनी? अंदर नेओ पहला पैदा किया गुरु ने। जिथे प्रेम है उत्थे तुसी कुर्बानी कर सकते। जदों पुत दा प्यो नाल अंदरों प्रेम है, वो कदे प्यो दी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, भावें जिवें किवें मर्जी होवे। माफ करियो, कदे पुत अपनी मां जां प्यो नूं गाल जां नरादरी शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई गैर बंदा कह के वेखे साध संगत, जिदन कोई प्यो दी पग वल कदम पुटदे उदन माफ करियो, नलैक तो नलैक पुत भी अपने प्यो दी पग नहीं लैण दिंदा, दूजे दा सिर ला के रख दिंदा। तुसीं तां गुरु दे लायक पुत्र हो, तुहाडे अंदर गुरु ने बहुत बड़ा जज्बा प्रेम भरिया होया है। ताइयों पातशाह ने कहा, यह प्रेम ही सिख नूं परमात्मा तक लेके जांदा है। एक बेनती इत्थे नुकता समझो, किसे कोल 5 गुण होण पर रब नाल गुरु नाल प्रीत ना होवे, पातशाह ने कहा तू मूया समान है। होए तू पढ़िया लिखिया बहुत होवे, ज्ञानी होवे, तू सोहना बहुत होवे दुनिया च, तू धनवान सब तो वड्डा होवे। ये कंपीटिशन हुंदे पूरे वर्ल्ड दे अंदर कि सब तो सोहना कौन है, सब तो अमीर कौन है। 5 दे 5 गुण हुंदियां तैनूं प्रीत ना होवे गुरु नाल, गुरु दी नजर विच तू मृतक समान। आ श्लोक तुहानूं याद है, अत सुंदर कुलीन चतर मुख अन्नी धनवंत। पातशाह कहंदे मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। तैनू प्रीत ना अंदर पैदा होई, याद रखी तू मूया समान। एक नुकता मैं इत्थे कहां तुहाडे समक्ष, कल्ला संत संत नहीं हुंदा, बाणी ओनू सिपाही बना दिंदी है। ओनू मता एवें ना समझो भी वो बाहरों संत है, ओदे अंदर शक्ति भी है, ओदे अंदर सिपाही वाला गुण भी है। जेड़ा बाणी नाल गुरु नाल जुड़िया वो संत भी होएगा ते सिपाही भी होएगा। जदों 1984 में सचखंड श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब ते अटैक होया, जिन्होंने लोग कहते सी कल्ले गुरुद्वारे बनाने वाले ने कार सेवा वाले, ये तो कल्ले सेवा कराने वाले, कल्ले सतनाम वाहिगुरू जपण वाले। संत दे अंदर भी वो गुण है। उदों साध संगत सचखंड श्री तख्त श्री हजूर साहब तो जिहड़ी सेवा बाबा निधान सिंह जी दे स्थान ते चल रही है, ये सारी सेवा कार सेवा धन बाबा गुरमुख सिंह जी तो आरंभ हुई, अगे बाबा जीवन सिंह जी, बाबा चरण सिंह जी, बाबा हरवंश सिंह जी बैठे ने, सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बचन सिंह जी। ये कार सेवा साध संगत फिर वखरे वखरे रूप में वखरे वखरे अस्थावां ते चलदी है। इको थां तो बाबा गुरमुख सिंह जी तो आरंभ हुई। खैर जदों सचखंड तख्त श्री हजूर साहब तो ये पता लगा ना उस जगह ते वे श्री अकाल तख्त साहब ते अटैक होने वाला है, गौरमेंट ने सलाह कर ली है जी अकाल तख्त साहब ते कब्जा करो, अंदर बैठे सिखां नूं मार दिओ। ये सारा कुछ महीने पहला खबरां उड़ के बाहर आउण लग पई। तुसीं हैरान होवोगे, कार सेवा दे चोले पा के, कुड़तियां पा के, टोकरियां ढोण वाले, सेवा करन वाले, गुरुद्वारियां दी इमारत बनाउण वाले 40 सिखां ने गुरु ग्रंथ साहब दे अगे अरदास करके कुड़तियां पाउण वालियां ने शहीद होण लई अरदास कीती। जे असीं गुरधाम गुरुद्वारे बना सकदे हां, गुरुद्वारियां दी रखिया लई शहीद भी हो सकदे। 40 जने अरदास करके तुरे तक श्री सचखंड हजूर साहब तो लंगर साहब जिथे अस्थान उत्थों चले साध संगत। बाबा शीशा सिंह जी ने कहा वे तुसीं किस तरह सेवा कौन करेगा? कहते जी अरदास कर दी है। उन्होंने कहा शाबाश, जाओ गुरु दे प्यारिओ, असीं कल्ले गुरुद्वारे बनाउण तक सीमित नहीं, जे गुरुद्वारियां दी सेवा करन वास्ते शान नूं बचाउण लई शहीदी देनी पए ते सेवा करन वाला शहीदी भी दे दिंदा है। वो 40 दे 40 सिख श्री अकाल तख्त साहब आए। एक चीज कई बार तुसीं सुणदे पढ़दे रहिंदे हो, जदों 84 दा साका सुनाया जाए, जदों भारतीय फौज दाखिल हुई परिक्रमा, ये जनरल बराड़ जिहड़ा कुलदीप सिंह बराड़ होया, उन्हें उस वक्त फौज की अगवाई कर रहा सी। उन्हें लिखिया वो कहंदा परिक्रमा दे नेड़े बढ़दियां सार सानू नहीं पता लगा गोलियां दी वर्खा किधरों हो रही है, सानू कई घंटे तक ही नहीं पता लगा वे गोली किधरों आउंदी। उदे पता लगदा सी जब ब्रस्ट बजदा 20 सिपाही ढेरी ढेरी हो जाते सन। असीं हैरान होए सी मोर्चे कित्थे बने हुए ने, वो सिख गोली किधरों चला रहे ने।
किधरों मींह की तरह गोली वरदी, सानू मोर्चे नहीं सी लभदे। एक याद रखियो, मोर्चे बनाउण दी जिन्नी सेवा की गई, वो कार सेवा वाले 40 दे 40 जिहड़े शहीद होने लई आए, उन्हें कल्ले टोकरी ढोण वाले नहीं, अपने हत्थीं कार मिस्त्री का काम करके वो सारी सेवा की। उस तो बाद साध संगत उत्थे रहन वाले शहीद होए, जेडे बचे पिछे जे एक कार सेवा वाले बाबा जी ने शरीर छड्डिया, उन्होंने जिंदा शहीद कहते रहे। असीं भी उन्होंने शहीद बाबा कार सेवा वाला कहीदा। हजूर साहब वालियां दा स्थान बिल्कुल सतलुज दरिया के कंढे बनया होया, उत्थे उन्हें सेवा निभाई, उन्होंने शहीद बाबा कहते सी। मैं पूछया जी क्यों? कहने जिहड़े 40 जने अरदास करके शहीदी दिन दरबार साहब गए, उन्हां चों आ 2 जने बच गए सी। इस बचन वाले जिंदा शहीद ने, इन्हां नूं शहीद कहंदे। साध संगत हुण तुसीं अनुमान लाओ वे कल्ली सेवा करन वाला गुरु दे दर उत्ते संत नहीं, जिहड़ा बाणी पढ़दा गुरु नाल जुड़दा, गुरु उहनूं सिपाही भी बना दिंदा। एवें उहनूं बाहरों ऐ साध संत ना समझो। एक दिन मैं होर बेनती कई लाइव ते नैट ते पै गई है कथा, मैं इहो जिहा कई तुहानूं कार सेवा वाले साधु बना दांगा। बाबा जी बैठे ने कल्ले इस करके नहीं भी बैठे ने चापलूसी, ये तुहानूं प्रतख दिखावांगा है ने बंदे। एवें ना समझो घरों बिल्ले बंदे कार सेवा च आए हुए। लो जी घर कुछ नहीं सी तां आ गए। इन्हां नूं एवें ना घरों कमजोर समझो। जे वारी तौर पर भी कौम है तुहानूं इदां दे साधु कार सेवा भवानीगढ़ चलदी है, वो भी दिल्ली वालियां दी कार सेवा हजूर साहब वालियां दी से। वो दिल्ली वो जगह भवानीगढ़ सेवा कराउण वाले साधु 100 किला जमीन वो नाम ते अज भी बोलती है, जाके कढ़ा लियो। वो पिता पुरखी प्यो दादियां दा मुरब्बे 100 किलियां दे मालक इत्थे टोकरियां ढोंदे ने। साध संगत 35 40 किलियां दे मालक टोकरियां ढोंदे ने। एक बंदा 5 साल सरपंची करके 40 किलियां दा मालक अज भी पंजाब दी धरती ते बनूट टोकरी ढो रहा है। इत्थे कल्ले ए ना समझे वे घरों खाली आए ने, 40 किलियां दी मलकीयत छड्ड के गुरु दी सेवा कर रहे हैं। सतगुरु कृपा बख्शिश कर। तुसीं टोकरी च पैसा पाउंदे हो ना, कई बार बंदा टोकरी च पैसे पाउण लग्गिया सोचदा वे 100 पावां कि 200 पावां कि 50 पावां, वो कई बार दूजियां दे वेखदा है। सज्जणों, जिन्हां उत्ते गुरु दी नज़र कृपा हुंदी है, कोई बंदा बंदे कोलों पैसे मंग लै, 50,000 मंगे 25 दिंदा है, लख मंगे अद्धा 50 के दिंदा है, वो कहना पूरे नहीं देने अद्धे दिंदा है। पर इस सेवा विच कैसा आनंद होएगा, कैसी शक्ति होएगी, कैसी खिच होएगी। टोकरियां विच कल्ले पैसे नहीं। मैं वो मामा नूं भी मत्था टेकदा हूं, मामा वेखियां ने जिन्हें अपने जिगर दे टुकड़े अपने पुत भी सेवा वास्ते टोकरी च पा दित्ते। टोकरी विच पुत पाए ने अपने, आ लो जी एक मैं सेवा च चढ़ा दिता है। साध संगत वो टोकरी विच पाए हुए ने। ये सेवा एवें नहीं हुंदी, इत्थे परिवार छड्ड के 4 दिन आउणा औखा है। सत्कारयोग बाबा हरवंश सिंह जी पंथ रतन सचखंड वासी, उन्होंने जगह उत्ते बाबा जी सेवा करा रहे हैं। साध संगत वक्त आया जदों बाबा जी गए ना, बाबा जीवन सिंह जी, उदों रौनकां लगियां पिंड उन्होंने सारे इकट्ठे होए। जाके उन्होंने पिता जी ने पूछा किवें वे अज सारे रिश्तेदार इकट्ठे होए? कहते जी मुकलावा लैन जाना है। छोटी उम्रे रिश्ते कर देंगे सी, वड्डी उम्र होनी फिर मुकलावा लैन जाना। कहते किहदा? कहते जी हरवंश सिंह दा। कहते इहदा मुकलावा काहदा लियाउणा है? ये तो गुरु नानक दे घर में साडे नाल विआहया होया। कहते महाराज तुहाडे नाल? कहते इह तां साडा है, इहदा नहीं मुकलावा लियाउणा। साध संगत कैसी दृढ़ता, कैसी सेवा होएगी। साधु दा वचन मन के सब कुछ छड्ड के नाल तुर पे। इत्थे बंदा एक दिन परिवार नहीं छड्डदा, साधु दा वचन मन के मुकलावा छड्डदा नहीं तां नहीं। क्यों? ये जीवन गुरु दे लिखे तुर दरगाह तो लिखिया होया। तुसीं भागां वाले हो, गृहस्तियां चो समा कढ़ के गृहस्थ चों आउंदे हो, 2-2 घंटे 4-4 घंटे सेवा करदे हो। वड्डे भाग ने, सेवा करो तां जो ये जीवन जन्म साडा सफल होवे। मैं फिर उत्थे बेनती करां, गुरु दे घर विच बाणी भी ते बाणा भी, भगती शक्ति संत ते सिपाही, शास्त्र ते गुरु दी बाणी दा अभ्यास इकट्ठे गुरु दे घर विच रखिया। ये शास्त्रां दा अभ्यास करके आपां होला महला मनाउने। पातशाह ने होली तो कढ़ के होले महल्ले तुहानूं ढाडी सिंह कल दे सुना रहे ने, अज भी सुणाउणगे, कल नूं भी सुणाउणगे। ये वो जगह जिथे मिथी हुई जगह उत्ते हल्ला करना, शास्त्र विद्या का अभ्यास करना जरूरी है। पता क्यों? इहदा जिक्र तां गुरु नानक साहब महाराज ने कर दिता। जिन्हां दी जगह ते बैठे आपां, धन गुरु नानक साहब महाराज की बाणी पढ़ो। पातशाह ने जदों बाबर दे हमले का जिक्र किया ना,
उदों पातशाह ने कहा सैदपुर दे पठान क्यों लुटे गए? ओए सैदपुर दे पठाणा दे कोल जेड़ियां घर में शस्त्र बंदूकां तमाचे रखे सी, कहंदे कई कई दहाके गुजर गए, उन्हीं चला के नहीं सी वेखे। पता क्यों? कोल रखे पंडितां कहा तुहानूं लोड़ ही नहीं जी, साडे कोल मंत्र है, कोई फौज चढ़ के या आपां मंत्र मारना बंदाना कर देना। जदों फिर वो बाबर चढ़ के आया, किसे दा मंत्र नहीं चलिया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, उन्हीं तोपक तान चलाई, उन्हीं हस्त चढ़ाई, उन्हां दियां जंग लगियां बंदूकां हत्थां विच ही चल गईयां, क्योंकि अभ्यास नहीं सी कीता। कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, उन्हीं हस्त उन्हीं तोपक तान चलाई, उन्हीं हस्त चढ़ाई। साध संगत, इसलिए पातशाह ने कहा शस्त्र विद्या का अभ्यास, तां जो शस्त्र चलाने भुल ना जाणगे। गुरु कृपा बख्शिश करन, आपां बाणी ते बाणे नाल जुड़िए, सतगुरु नदर कृपा बख्शिश करन, ये मनाए हुए पुरब अपने तां सफल होणगे। समा मेरा समाप्त होण लगा, एक छोटी जी बेनती कहनी है, जिंदगी च तुहाडे काम आएगी। कहंदे ने एक वक्त ना देवतियां ने मीटिंग करके समझण वास्ते नाराज हो गए वे मीह ना पाओ। कादे वास्ते? मीह नहीं पएगा औड़ लग जाएगी, फसलां सुक जाणगियां, सोका पै जाएगा, काल पै जाएगा, अनाज तो भुखे मरनगे, आपे ही लोग कहणगे मीह पा दे। देवतियां नूं पूजणगे, अपनी पूजा कराउण लई देवतियां ने कर मीटिंग कीती वे मीह नहीं पाउणा बंद कर दिओ। सारे देवतियां ने कहा मीह कौन पाउंदा? इंद्र। इंद्र नूं कहा वे तूं मीह नहीं पाउणा 2 साल। वो कहना चलो मैं नहीं पाउंदा, पर मैनूं दस्सेगा कौन वे भाई 2 साल हो गए हुण मीह पा दो। मैनू कौन दसेगा 2 साल हो गए? कहते शिव जी की ड्यूटी लाने। शिव जी नूं भोले नूं सद के कहा वे शिव जी महाराज जदों 2 साल हो गए ना तुसी शंख बजा दिओ, तुहाडे शंख की आवाज़ सारियां पुरियां ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी शिवपुरी सारे पासे जाती है। शंख बजया आवाज़ जानी है इंद्रपुरी, इंद्र ने मीह पा देना। कहते ठीक है, फैसला हो गया, मीह रोक दिता। 1 साल मीह ना पिया, सोका पै गया, लोग औखे होण लग पए। 1.5 साल लंघ गया, जदों मीह ना पिया तां सोका पै गया, काल पै रहा, इन्नी सुक्की जमीन धरती पत्थर वर्गी हो गई। उस सोके विच तपदी धुप विच एक बजुर्ग ने बलद जोड़े, हल जोड़िया, खेत बोण लग पिया। जेड़ा बंदा लंघे वो कहंदा बाबा मीह तां किते दिसदा नहीं, औड़ लगी है, तू खेत काले बोने? सुक्का खेत बोण नाल की होना? वो कहंदा मेरी मर्जी है, मैं बाहर रहा, मीह ना पवे बेशक मैं खेत बाणों नहीं हटना। वो खेत सुक्का ही बोण लग पिया। कहंदे सब कुछ शिव जी वेख रहा सी बैठा। उन्हें पार्वती नूं कहा देखो बंदा मूर्ख है, मीह तां पैना कोई नहीं, ये खेत क्यों बोंदा है, नाले वो भी सुक्का। पार्वती ने कहा देखो जी ये पूछना चाहिए। शिव जी ने कहा जा तां बंदा मूर्ख है ते जां बंदा बहुत सियाणा है। सुनियो ध्यान नाल, जा तां बंदा मूर्ख है जां फिर बंदा बहुत सियाणा है। जेड़ा सोके विच भी धुप विच भी खाली सोके च मीह बाही जांदा है, अपना हल बाह रहा है, मीह पिया नहीं सुक्की जमीन बोंदा है। जां तां बंदा मूर्ख है जां फिर बंदा बहुत सियाणा। पार्वती ने कहा जी मैं पता कर दी। भेख तार के धरती ते आके पुछदी है बंदे का रूप लैके, बाबा जी आ हल क्यों वाही जाते हो? वो कहना हल मेरा बलद मेरे, तू की लेना है? उन्हें कहा बाबा गल इदा वे मीह तां पिया ही नहीं, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, की पता अगे भी ना अजे पवे। सुक्की धरती क्यों वाही जाते हो जदों मीह ही कोई नहीं पिया? वो बजुर्ग ने कहा गल इदा है, मीह पवे ना पवे अभ्यास तां करना पैंदा है। कल नूं मीह पै गया ते आ बलद जे किते हल जोना भुल गए, मैनू हल बाहना भुल गया, बलदां नूं किते तुरना भुल गया, हल बाहूगा कौन? अभ्यास तां कर लईए, जदों मीह पएगा पएगा, अभ्यास नहीं छड्डना चाहिए। जे मैं अभ्यास छड्ड दिता हल बाहण दा, कल नूं मीह पै गया मैं हल किवें बाहांगा? मैनू पता है मीह नहीं पैना अजे, पर मैं अभ्यास कर रहा, किते हल बाहना भुल ना जावे मैनू, मैं अभ्यास कर रहा। पार्वती सुन के चली गई। उन्हें शिव जी नूं कहा जी बंदा वाकई बहुत सियाणा है, मूर्ख नहीं है। वो कहना मैं अभ्यास कर रहा, हल बाहना ना भुल जा किते। कहना मैं कहा सी ना वे बंदा सियाणा होना है। ते पार्वती ने पता की कहा, कहती शिव जी महाराज एक गल है, वो बजुर्ग बंदा कहता मैं हल बाहना किते हल बाहना भुल ना जावां, अभ्यास करदा। आ महाराज तुसीं शंख बजा के वेख लो, तुहानूं किते भुल ही ना जावे बजाउणा शंख। ये तो देख लो किते भावें हौली देनी बजा दो,
शिव जी ने कहा गल ठीक है, किते संख बजाना ना भुल जा। उन्हें पार्वती की गल मनी, संख बजाया, ओदी आवाज अंदर पूरी पहुंची, एकदम मोले धार वर्खा शुरू हो गई, पानी जल थल धरती ते हो गया। साध संगत ये सच है, जेड़े बंदे अभ्यास नहीं छड्डदे वो गुरु की किरपा दा मींह एक दिन पुआए लैंदे ने। जेड़े कहण जपजी साहब पढ़न नाल की होना, सेवा करन नाल की होना, अभ्यास छड्ड दिओ, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अभ्यास जिंदगी विच करदे रहो। जेड़ा सिख जपजी दा जाप कदे नहीं छड्डदा, एक दिन गुरु की किरपा दा मींह उत्ते पै जांदा है। अभ्यास करन वाले गुरु की किरपा दा मींह पुआ लैंदे ने। इसलिए जिंदगी च अभ्यास ना छड्डिओ। मैं तुहानूं बेनती करांगा, जिन्ने तुसीं बैठे हो, ज़्यादा नहीं तो जपजी साहब का जाप हर सिख नेम बनाओ। बच्चा वड्डा छोटा सब नूं बेनती है, भाई जपजी साहब कर लोगे पक्का? जपजी साहब पक्का करो, फिर महापुरुषों के उपराले सफल ने कर लोगे। हाथ खड़े करके जकारा छड्डो, जपजी साहब नहीं कदे छड्डे। बोले सो निहाल। बीबियों तुहानूं एक बेनती करदा, दही बनाउंदे हो घर च, 2 चमचे दही दे 2 किलो दुध च पाओ। दुध की बन जांदा? दही। उहनूं कहंदे जाग लाउणा। इदां सवेरे उठ के जदों चाह बनाउंदे हो ना घर च, जाग ला दिओ शब्द दा। जदों चाह बनाओ, चाह रखदे कहता सतनाम श्री वाहिगुरू, खंड पत्ती पाई सतनाम श्री वाहिगुरू, दुध पाया सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों कप्पां च पुणिया कहता सतनाम श्री वाहिगुरू। चाह बनाउंदे 5 बार वाहिगुरू कह लिया करो, जाग लग जाने। मेरा विश्वास है 1 महीने बाद तुहानूं रिजल्ट बैक आउण लग पैणगे। जेड़े तुहाडे घर दे मैंबर 2 4 5 7 जिन्ने सवेरे चाह दुध पींदे ने, 1 महीने बाद वेखिओ सारिਆਂ ने चाह पीण लग्गिआं कहण लग पैणा सतनाम श्री वाहिगुरू। क्यों? तुसीं जाग लाता पैण, ये भी काम कर लोगे। चाह बनाउण लग्गिआं सतनाम वाहिगुरू कह दिओ। ते नाल बेनती विच जेड़ियां बीबियां बंदियां कोलों चाह बनवाउणियां, बंदियां नूं कह दिओ। कई बंदियां कोलों भी चाह बनवाउणी है ना सवेरे, वो माड़ी गल नहीं, उदां चाह बनाउणी चंगी गल है, पर कह दिओ वे सरदार जी जे बनाउणी सवेरे चाह ते नाल सतनाम वाहिगुरू कहना। ये गल असीं सुन के आए हैं। इन्नी कु बेनतियां तुसीं प्रवान कर लिओ। एक पंक्ति गज के प्यार नाल कहो, फिर मैनूं असीस दिओ, आशीर्वाद दिओ, आग्या बख्शिओ। कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा अति सन्मानयोग श्रीमान जहदार संत बाबा बचन सिंह जी, इत्थों वाले होर महापुरुष जिन्ने सेवा करा रहे हैं, सतगुरु सारिਆਂ ਦੀ चरण धूड़ बख्शण ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल वल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल आप मुकत, ऐसे गुर को वल वल गज के आप मुकत। ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर को वल बल जाइए। ऐसे गुर को, ऐसे गुर को धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री। ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर को वल बल जाइए। ऐसे गुर, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल आप मुकत,
ऐसे गुर को वल वल आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु सतगुरु किरपा वाहिगुरू किरपा बख्शिश करन सतगुरु तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ सानू चरण धूड़ प्राप्त होवे तां जो ये जीवन जन्म सफल होवे। समूह संगतां दा धन्नवाद। सत्कारयोग श्रीमान जथेदार बाबा बचन सिंह जी जो बहुत वड्डियां सेवावां हरियाणे विच भी दिल्ली विच भी यूपी विच निभा रहे हैं। पंजाब विच भी सेवा बहुत थावां ते चल रही है। इस स्थान ते उन्होंने सत्कारयोग बाबा जी नूं जिम्मेवारी दित्ती हुई है। उन्हें हुक्म अपना कल के आप संगत के दर्शन करवाए ने। उन्होंने धन्नवाद कोटानकोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। दिओ सीस फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की